ठीक है सर, पढ़ ली। So we will do some numericals now, the topic now. And ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर. ठीक है. So let me just so this equation where you add displacement current, that epsilon naught pi e by dt, जो extra जुड़ता है displacement current, that equation is called as modified Ampere-Circuital law, modified by Mr. Maxwell. Okay. तो एक एम्पियर सर्किटल लॉ है, एक एम्पियर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है. अच्छा, ठीक है. What is the chapter number? 10, 13, 12? 12 है. 12 है. मुझे डाउट था कि आई एम नॉट टू. Dual nature, abated chapter, corrected chapter, 8 तो नहीं है क्या ये? I think it is, my guess is it is 8, but let's see, क्योंकि SL में 8.4 लिखा हुआ है. अच्छा, मैं चेक करता हूँ एक बार. Let me see. Yes, it is. अच्छा. It is. Okay. So very important question. All right. Before we jump, one more important Q&A so that it gets ingrained more. Okay. Some important properties of the displacement current. Read this through while I search. हम कर चुके हैं, but just a very good summary for because it exists in d phi by dt time varying conditions. लेकिन जो कंडक्शन करंट होता है उसको कोई ऐसी कंडीशंस नहीं चाहिए. ठीक है. वो स्टडी स्टेट में भी होता है. इट इज नॉट अ करंट. It is actually not a current. It only adds to current density in ampere. It produces magnetic field, so it is called a current. Something very profound, but we don't understand it because इस level की physics हमारे syllabus में नहीं है.
अच्छा ठीक है, इट्स नॉट अ करंट, है तो पोलराइजेशन ना, हम्म charges यस do सर get added, but that's all. Okay. What is its magnitude? Rate of displacement of charge. That वो जो charge हिल के polarize हो जाते हैं सारे. हम्म This is the most important word in it. Together with conduction current, the displacement current satisfies the property of continuity. मतलब बीच में कैपेसिटर प्लेट के अचानक ही करंट गायब हो जाता है, ऐसा नहीं है. कैपेसिटर वाले एरिया में आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए करंट इज कंटिन्यूअस. आई कंडक्शन के बाद आई डी आता है, और आई डी के बाद फिर से तार शुरू हो जाती है, आईसी आ जाता है. ठीक तो है दे आर क्लियर है कंटिन्यूअस. ये सब कुछ एक कैपेसिटर प्लेट के बीच में. अच्छा डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ वहीं एग्जिस्ट करता है और कहीं नहीं करता. ठीक है समझ गया करेक्ट. जस्ट थोड़ा सा देखो, ऐसा है. Is it perfect? 100% perfect? It is not. But नहीं this is the nature of this chapter. We don't need to be scientists in this. We just need to understand it broadly and move on with it. Perfect है नहीं है. वो तो है That I understand. ठीक है ना? So let's be realistic हम्म also. हम्म The real explanations and all are not in our course. So no okay, point wasting our time in this. हम्म Let's do it only to the extent of what we can handle or हम्म is in the course. Let's put it this way. हम्म इसको लोग मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोलते हैं, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट पढ़ लिए? यस सर ऑलराइट. सो वी विल कम बैक टू दिस एज वी स्टार्ट डूइंग न्यूमेरिकल्स. अच्छा ठीक है आएंगे वापस, देखेंगे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आते हैं. ठीक है दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स. जस्ट करेक्ट हम्म इट. ये जो लिखा हुआ है, हम्म, दिस इज सीएम एंड दिस इज पावर ऑब्वियसली. ठीक है It is up, whatever is happening is inside a capacitor. You have to find ID. You are given that the electric field in the gap between its plate rises steadily. d phi by dt rise कर रहा है, right? So just remember that. पिछले एक तो हमें मालूम है कि what the hell is this? अच्छा, ID. Okay. हम्म Let me go to the next page. ठीक है, इसको just copy this and go to the next page. I think ये पेज हो गया. इसका लग रहा ये करने नहीं दे रहा अब यार. Okay. So let's read every line carefully. ठीक है It is being charged so that electric field in the gap between the rises steadily.
पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स नहीं है, हम्म सो इट इज नॉट अ स्टडी स्टेट कंडीशन। धीरे धीरे बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में। हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। और पर सेकंड भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको दिया हुआ है DE/dt। 10⁻²। ठीक है। एरिया भी दिया हुआ है कैपेसिटर का, सो इट्स अ सर्कुलर कैपेसिटर। हम्म कोई यहाँ पे ऐसा सोर्स लगा रखा है वोल्टेज का जो धीरे धीरे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैदा कर रहा है। हम्म यहाँ तो कंडक्शन करंट है तार में। करेक्ट। ऐसा लग रहा है कि यहाँ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, लेकिन होती नहीं। यहाँ पे ID आ जाता है, which actually is not a current but something to do with polarization। ठीक है। So we have to find displacement current ID. Now we know, so area of the capacitor is also known to us। मुझे जो गिवन लिखना है मैंने लिख दिया सारा। हम्म अब मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। मैं जो सोल्यूशन में सबसे पहले लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग यूज्ड। ID का मुझे सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, एक एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt। हम्म दूसरा कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है, एक कॉन्सेप्ट ये पता है, the second concept I know is that capacitance is given by इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, का क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? Q/R²। नो 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 नो, वो तो चार्ज होना चाहिए ना, सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं यहाँ पे कोई भी, सो नहीं। Q इज अननोन, राइट? फ्लक्स दिया हुआ, रिमेंबर। हम्म, हमें फ्लक्स चाहिए, ये हमें मालूम है, फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दिस इज अननोन, राइट? ये सब। आई नो द मीडियम इज एयर हम्म बिटवीन द प्लेट्स। कुछ लिखा नहीं ना, मीडियम तो एयर ही होगा या वैक्यूम होगा करेक्ट। मान लो। बट आई नो फ्लक्स इज रिटन एज E A। एरिया वेक्टर जो है E.A, एरिया वेक्टर यूं होता है परपेंडिकुलर टू द हम्म एरिया। E यहाँ पे है, E और A, तो E.A इज EA। करेक्ट। टेक डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स, d phi E/dt। तो सेकंड कॉन्सेप्ट इज दिस, एंड सेकंड से जो डिराइव हो रहा है वो डेरिवेटिव जो है वो हो गया ये आ गया। हम्म क्या चाहिए था मुझे? व्हाट वाज अननोन, जो मुझे निकालना है? अगर मैं बोलूं टू फाइंड की बात करूं, तो टू फाइंड ID है ना क्वेश्चन में तो। हम्म बट ID निकालने के लिए आई डोंट नो दिस, करेक्ट। व्हाट डू आई डू देन? d phi E/dt। So this is area is known, and dE/dt मुझे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, एरिया इनटू dE/dt। dE/dt इज आल्सो नोन, हम्म मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। समझ गया। d phi/dt को मैंने ये ले लिया, हम्म और एक मेरा एप्सिलॉन नॉट है करेक्ट। जो मुझे डालना है, परमिटिविटी। सो हम्म पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻12 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Solve it, get the answer. And obviously, since you're finding displacement current, answer is going to be in एम्पियर। मुझे ठीक। फ्लक्स के बारे में और भी कुछ पता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या? E/A होता है वो, ये ये पता था हाँ।
इससे मुझे पता चल गया। ठीक है। एक तो मुझे ये पता था रूल, डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये नहीं पता था मुझे डी फाइव बाई डी टी। लेकिन मुझे दिखा यार इसने डी ई बाई डी टी को इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप राइजेस स्टेबिलिटी लिखा है पर सेकेंड। हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पर सेकेंड बेसिस पे बढ़ा रहा है। हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर सेकेंड। E is given by dV by dr, माइनस साइन के साथ। पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था हमने पोटेंशियल यस सर। वाले। क्लियर है ये? हाँ। यस सर। ठीक है। सो द कंडीशंस आर नॉट स्टडी स्टेट। डोंट डोंट थिंक कि स्टडीली का मतलब है स्टडी स्टेट कंडीशन। इसका मतलब है बढ़ चेंजिंग, लगातार हम्म, बढ़ता हुआ, मतलब स्टडी नहीं है। स्टडी तो मतलब फिक्स्ड। ओके। ऑलराइट, गो टू द नेक्स्ट वन। हम्म, डू इट। कर रहा राइट, नहीं होता तो करते हैं डिस्कस। नहीं नहीं, कर लूंगा मैं। रूल एक ही है सिर्फ, डी फाइव बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट। यस सर। और कोई रूल ही नहीं है इसके अंदर, देयर इज नो रूल। टेक योर टाइम, थिंक। हम्म, हो जाएगा ये। यहाँ लिखना है, ये लिखना है, ये भी डीवी बाई डी टी है बाय द वे। हम्म, दिस आई थिंक वोल्ट पर सेकेंड, राइट? द वोल्टेज इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड है ये। हम्म, सो डीवी बाई डी टी दिया हुआ है। हम्म, यूज दैट, यूज डीवी बाई डी टी टू कैलकुलेट इट, करो। यस सर। कैपेसिटर के बीच में जो होता है वो तो होता ही रहेगा। हम्म, आई एम चेकिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इफ देयर इज एनीथिंग। हम्म,
एक क्वेश्चन भी नहीं है डिस्प्लेसमेंट करंट पे, इडियट्स। लेटर टॉपिक्स पे सारे। अब एनसीईआरटी में चेक करते हैं, फिर उसमें करते हैं सैंपल पेपर में ना, कुछ तो मिलेगा। यस सर। कैपेसिटर के लिए जो रूल्स मालूम है उनको मत भूलना, साथ में वो भी लेके चलना अपने दिमाग में। ठीक है। राइट, सो कैपेसिटेंस दी हुई है, रिमेंबर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू, ई नॉट ए बाय डी। राइट, ये तो पता ही है। हाँ। ठीक है, यूज इट इन योर फेवर कि, और जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स, उसको भी चेंज कर दो, E A लिख दो, ये तो पता ही है। हाँ डी एक ई है फ्लक्स के उसका। बारे में भी हाँ। इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मालूम है। तो एक ये, इससे आंसर आएगा, ये पता है कि ये पता है कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज से ये दोनों पता है हमें एक्स्ट्रा। हम्म। एरिया नहीं दिया तो एरिया हम हटा देंगे ना यहाँ हम्म। से, यस सर। हो जाएगा। है ना। देखो, हम्म। मतलब मैं कह रहा हूँ दिमाग में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जैसे अभी तक हमने नहीं पढ़ा था कि कैपेसिटर का भी कुछ नॉलेज चाहिए, हाँ। लेकिन यूज हो रहा है साफ साफ। तो एरिया तो है नहीं अपने पास, और हाँ ई नहीं को है। भी हम लिख सकते हैं बाय द वे, ई को भी हम लिख सकते हैं, ये वी को, वोल्टेज जो है, वोल्टेज और ई आपस में कैसे लिंक्ड होती हैं ये भी हमें पता है कि ई बिटवीन ए कैपेसिटर इज V बाई डी, जो हम्म। उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उनके बीच में जो गैप होता है। सो भाई डीवी वही। बाई डी आर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, वैसे ही। V बाय, यू कैन राइट इट एज V बाई डी। और एरिया यहां से आ जाएगा कैपेसिटर के फॉर्मूले से। हम्म। एरिया को सब्स्टिट्यूट कर दो ना, एरिया इक्वल टू हम्म। CD बाय एप्सिलॉन, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 3 ऑल आर लिंक्ड टू ईच अदर। हम्म। टेल मी इफ समथिंग इज absurd for you, do let me know. बस स्ट्रेट मतलब एक बार करने की बात है, हम्म। can solve any numerical। हो गया आ सर। गया, आ गया। राइट द यूनिट्स प्लीज, काफी महीने हो गए भाई, यूनिट लिखने आना चाहिए अब। हम्म। ओके, जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, पिछला न्यूमेरिकल जो था उसमें सॉल्व करोगे अगर, आई थिंक वेयर डिड वी सॉल्व इट, पिछले वाला, इसी पेज पे करा था शायद। अच्छा इसी पे कर दिया। ओके, हाँ ऊपर ही है। so I think I've written it wrongly, it is not 5, it was 0.07। अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट। कॉपी नहीं होता है।
अपना प्रोग्राम तो चल रहा है कॉफी का. यू डोंट ड्रिंक? अभी तो विंटर्स भी आ गई है और अच्छा, हॉट कॉफी फिल्टर. नहीं, मैं पीता ही नहीं वैसे। मतलब मैं बहुत ही ओकेजन्स पे पीता हूँ। ओके. स्टारबक्स टाइप्स अगर गए तो. वो तो कभी नहीं पी मैंने जिंदगी में। अच्छा करा है वैसे, कचरा. जिंदगी में कभी नहीं पी। बंडल कॉफी नहीं दी मैंने. चीनी भरते थे और कुछ होता तो है नहीं. बताइए। You have lost weight after that? You have नहीं, कुछ खास नहीं। maintained. हाँ, बढ़ नहीं रहा बस वही। ठीक है, वो भी काफी होता है. हम्म, अभी हार्डकोर एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही उसलिए वेट गिर नहीं रहा। करना भी मत हार्डकोर, तो इट कैन कॉज यू इंजरी. वो बड़ी फिट, बड़ी वही। मतलब प्रॉब्लम में डाल देगा. हल्का हल्का हाँ, योगा, स्ट्रेचिंग, दौड़ना, क्रिकेट खेल लिया, इतना काफी है. बैडमिंटन खेल लिया, थोड़ी बहुत अब इसके बाद हल्का ही फुल्का. डाइटिंग पे जाऊंगा, ये 12th के बाद, मतलब ये जेई के बाद। इसका तो इंक खत्म हो गया था। कौन? कॉपी हम्म, इट एंड पुट इट ऑन नेक्स्ट पेज. आ गया देखो. हाँ, आगे सब। ठीक है. Let me see if I can. डायग्राम नहीं आया ना? नहीं, ऐसा क्या? कॉपी द होल थिंग. नहीं, ये उसको नहीं ये कॉपी कर पाया. नहीं कर पा एनीवे रहा। ठीक है, दो प्लेटें हैं. ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्लेट हैं दो. मैंने बहुत लोगों को ये चैप्टर मेमोराइज कर रहा अच्छा। है. कईयों को इट्स हार्ड, हाँ, अनलेस यूर अ है तो सही है। हार्डकोर. थोड़ा सा मतलब ऐसा है। एब्स्ट्रैक्ट है मतलब. मान लो जी, हम्म, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, मान लो. कैपेसिटेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, हो गया. नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग, अग्रीड. अच्छा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब डीवी बाई डी निकालना है. अच्छा। हाँ। मतलब वी को लिखना है फिर ई बाई डी, और ई में डालना है. ई दिया हुआ है. अच्छा. नहीं। The charging current is constant and is equal to 0.15. Oh, okay. The charging, calculate the capacitance and rate of change of. ठीक है. Capacitance by an external, okay. IC मालूम है. Epsilon नॉट, चार्जिंग करंट भी मालूम है. ओके. चार्जिंग आ, करंट का क्या यूज करें, आईसी का क्या यूज करें, लास्ट में देखते हैं. Is Kirchhoff's first law valid at each of the capacitor plate? Okay, junction rule, first law. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. जंक्शन हम रूल. इसको आई डी इज इक्वल टू सी इंटू डीवी बाई डी टी करें। क्या 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 कम अगेन? जैसे हमने जो पिछले पेज पे क्वेश्चन करा था उसमें हमारा आया था आई डी इज इक्वल टू सी इंटू डीवी बाई डी टी। हाँ ठीक है, अंडरस्टूड. हमने कैपेसिटेंस की तो वैल्यू आ जाएगी, और जो डीवी बाई डी टी गिवन ना, नहीं, वो भी नहीं है। यू मीन दिस राइट, टी फाइव. बट लुक एट कैपेसिटर, राइट. यू हैव polarization happening. The rate at which the charge displaces, and this is your current 0.15 ampere, which is dq by dt here.
कंडक्शन करंट की बात कर रहा हूँ मैं. हम्म. Okay, the charging current which is being supplied to the capacitor is this. So capacitor हाँ. के ऊपर जो dq by dt है, that is 0.15. हम्म. तो सेम ही हो गया ना डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर. वही. So dq by dt is 0.515. Is the Kirchhoff's voltage law applicable? Can you apply Kirchhoff's voltage? No, Kirchhoff's junction law. Junction law is sum of currents. हम्म. Incoming is equal to outgoing, right? यस सर. Yes. Really, we will have to work on what is the direction of flow of uh, displacement current. अभी तक तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट को सेम डायरेक्शन में मानते रहे. हम्म. कंटिन्यूटी यहाँ पे खत्म हुआ और कंडक्शन और अब्रप्टली डिस्प्लेसमेंट चालू हो गया. हम्म. वेट. ओके, वन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. डायरेक्शन तो नहीं मिली, बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. ओके, so read it very carefully. Read it. डिस्प्लेसमेंट करंट को लिखा, हम्म. डेरिवेटिव के अंदर ई डॉट ए लिख दिया फ्लक्स को, वही जो हम कर रहे हैं. ई ई हम्म. डॉट ए, यस एरिया सर. ऑफ अ कैपेसिटर बाहर लिख दिया, डेरिवेटिव ले लिया. डी ई बाई डी टी हमने भी ये करा था. फिर ई इज इक्वल टू वी बाई डी हमने भी ये करा था. हम्म. वी को लिख दिया क्यू बाई सी. ठीक है. सी की वैल्यू डाल दी, डी डी कट गया, हम्म. हमने भी ये करा था. तो यस ई सर. आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. टेक डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स नाउ. यू गेट डी बाई डी टी इज इक्वल टू, यही हो गया ना, देखो. डी बाई डी हम्म. टी इज इक्वल टू, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट. So dE by dt is equal to I upon. So the displacement current is equal to the, read the last line, very important. So that the displacement current is equal to the conduction current bringing charge to the plates. दोनों हाँ. बराबर ही होते हैं. यस सर. डायरेक्शन का सेंस
one very important diagram that you have to see. Okay. Okay, and the idea is to increase your understanding. That's all. The better understanding you have, better you can tackle this abstract topic. Yes, sir. है ना, थोड़ा सा मतलब कई बार ठीक है, you study NCERT, you will run away. उन्होंने तो पता मतलब है, जो लिखा है ना उन्होंने, इस बार तो बहुत ही हाल खराब करा। look at different surfaces and especially focus on a surface which is ये third हम्म surface, जिसकी शक्ल जो है ये, it looks like this. So this and this. Did you see he's writing there is no current through this surface? हाँ। Why? कह रहा है देखो ये एक एम्पीरियन लूप ये ले लो, इसमें करंट मिल जाएगा आपको। हम्म करंट सरफेस 2 में भी मिल जाएगा, कंडक्शन करंट ही होगा, ये तो कंडक्शन करंट ही जा रहा है ना। हम्म अच्छा, बोलता है सरफेस नंबर 4 में चले जाओ, बाहर जो टोटल ये बना हुआ है ये वाला, ठीक है। है ना, इसमें भी करंट कह रहा है, हाँ। सिर्फ इसमें नहीं है। यही तो बोला था मैक्सवेल ने यस सर। कि अगर मैं इस साइड देखता हूँ, आई सी अ करंट, जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर जाता हूँ करंट नॉट सीन, वाई? तो दिस इज द डायग्राम व्हिच एक्चुअली शोज हिज थिंकिंग कि हाउ इज दैट करंट इज हेयर, करंट इज हेयर, करंट इज एंटरिंग, करंट इज इन द वायर, बट देयर इज नो करंट हेयर। यस सर। लेट मी सी इफ वी कैन सी द डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन के बिना ऑल्दो द मैग्नीट्यूड इज सेम, हम्म बट अगर डायरेक्शन पता चल जाएगी तो वी कैन डिसाइड वेदर किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल और नॉट। हाँ, किरचॉफ्स वो उसका करंट बहुत लॉ, फायदा। इसमें इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग, राइट? हम्म एक्चुअली तो मतलब इनकमिंग तो यही है जो कंडक्शन करंट है, करेक्ट। यहाँ पे जो जंक्शन है प्लेट पे, ये हम्म एंटर इतना हो रहा है आई डी, सॉरी आई सी, और इस साइड आ रहा है आई डी। हम्म, तो ऐसा लग रहा है कि आई सी इज इक्वल टू आई डी, तो इस नोड पे जो भी आ रहा है वही जा रहा है। कंटिन्यूटी भी है ना कि यस। करंट अब्रप्टली बंद नहीं हो गया ये कैपेसिटर प्लेट में, या हाँ। करंट है। ऑन द फेस ऑफ इट माय आंसर इज यस, Kirchhoff's current law, the sum of incoming currents. No, these questions are way too. हाँ, it is applicable. अच्छा, ठीक है। So जो भी incoming आ रहा है वो outgoing ही है. So if you remember,
way back when we studied Kirchhoff's current law, हम्म, this was the diagram for Kirchhoff. I hope you remember the Kirchhoff's current law. हाँ याद है. है ना, तो nothing complicated anyway. Okay, ये था. ये याद है. हाँ. ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड था बड़ा. यस सर. इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग. आउटगोइंग. और लूप में जाते हैं तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सारी वोल्टेजेस इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेजेस के सम के बराबर. प्लस माइनस साइन आपको खुद ही ट्रैवलिंग वो के तो. अनुसार उसको एडजस्ट करना है. Okay. So I'm just seeing the exact line. In fact, some authors have a view that मैक्सवेल ने जो एक काम करा है ना, ये जंक्शन पे के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, हाँ. कि IC इज इक्वल टू ID, हम्म. इससे किरचॉफ्स लॉ का जन्म हुआ है. अच्छा. He was the one who said कि there has to be continuity. ऐसा नहीं कि करंट अचानक खत्म हो जाएगा. एंड तो उसने, तो he is actually given rise to this law. It is so true. अच्छा. हम तो सोच रहे थे ना कि हम इस लॉ को उस हम्म. पे लगा सकते हैं. हाँ. As per scientists, they think that this particular situation of IC incoming and ID outgoing from the plate acting as a node here, हम्म. actually is responsible for this law, derivation of this law. Kirchhoff's ने यहीं से सोचा. ओके. Quite remarkable. यस. My God. I'm going to the next page now. ये खत्म हो गया. Refer to figure. इसमें एक्स्ट्रा जो एलिमेंट निकालना है वो बी निकालना है, जिसके लिए हमें एम्पियर सर्किटल लॉ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. पहले करंट निकाल लेंगे और फिर हम्म. एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से BDL, जो हमने अब नया मॉडिफाइड लॉ सीखा है, वो ये सीखा है कि इंटीग्रल ऑफ BDL इज टू बी रिटन एज म्यू नॉट IC प्लस ID. दिस इज द मॉडिफाइड लॉ. So first you have to find on the axis, which is this. Then 6.5 centimeter, then etc. etc. हम्म. And ठीक है. this is between the plates. Where are the two plates here? प्लेट. ये लिखा नहीं है between the plates at point 1. Refer प्लेट to कहाँ पर है? figures and symmetry in problem to calculate on the axis with plates का है. वही. Plates. Okay.
प्लेट तो नहीं दिख रही यार कहीं पे। नहीं दिख रही। समझ नहीं आया भाई क्या बोल रहा है। Basically, this was a question where we had to apply BDL is equal to mu naught ID, क्योंकि हम्म, प्लेट्स के बीच में तो जो करंट होता है दैट इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट करंट। हम्म, When R is greater than R, the capacitor plates are स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, बट स्फेरिकल कैपेसिटर में एक अच्छा ये स्फेरिकल प्लेट्स वर्ड में मैं थोड़ा दूसरा कैपेसिटर कहाँ गया। वेट लेट्स कम बैक टू दिस, आई थिंक देयर इज समथिंग not so sure what there is a okay. अब पहली बार आया क्वेश्चन, सर्कुलर प्लेट्स हैं, वो स्फेरिकल प्लेट्स थी मुझे लगता है, दूसरी प्लेट नहीं दिख रही थी मुझे। आई विल फाइंड आउट। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। द ओनली डिफरेंस आई थिंक इन दिस क्वेश्चन इज दैट द अच्छा ना, यू वोंट बी एबल टू डू दिस, यू डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट, अच्छा। यू डोंट नो व्हाट इज ट्रांजिएंट करंट राइट, तुम्हें नहीं पता क्या नहीं। होता नहीं। है। You won't be able to do this. Okay, wait. Understood. So you won't be able to do this because it's not known to you. So let's leave this. I just want कि एक क्वेश्चन दिख गया। मिल गया। Very similar to what we have done. The only good point is इसमें they have given the frequency. तो टाइम वेरिंग चाहिए होता है हमें सब कुछ, वो इन्होंने दे दिया। So hopefully this will help us finally get one question जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके।
सब कुछ सेम है, डीवी बाई डी टी, डी बाई डी टी, सब कुछ सेम। हाँ, ठीक है। जस्ट ऑल द थिंग्स वी डिड अर्लियर आर एप्लीकेबल। आरएमएस पूछ रहा है।
हम्म, ठीक है, ये तो याद है तुम्हें यार। हम्म, अच्छा हाँ, वो रिएक्टेंस करके, ओके। पीक जो मुझे किया नहीं, हुआ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही, बढ़िया। सही है, ये भी आ गया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का भी सेम ही आंसर होगा। हम्म Is the conduction current equal to displacement current? Okay, just when you're doing this, go through this list once more. Read it very carefully. Okay, अच्छा। yeah, read it.
अच्छा। बढ़िया नहीं लिखा हुआ? हम्म। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा वो है, चलो सेकंड पॉइंट तो अंडरस्टूड है कि इट विल आल्सो, दिस डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स विल आल्सो प्रोड्यूस अ, जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। हम्म। इसका मतलब ये भी है ना कि छठे पॉइंट से कि अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपेसिटर की प्लेट में तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और हम्म। डिस्प्लेसमेंट करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा। तो इसका मतलब एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। है ना? हम्म। ओके, ये भी बहुत क्लियरली लिख दिया इसने। इसका आंसर जो तुम पढ़ रहे हो क्वेश्चन, हाँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस दे आर इक्वल। ठीक है, तो वी का यस हो गया। यस। पीक वैल्यू भी निकाल लिया तुमने, वही आई नॉट। यस सर। बट यू शुड राइट, ऐसा लग रहा है यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एसी करंट, यू हैव नॉट इवन यूज द वर्ड आई डी। कहीं लिखा नहीं कि तुम निकाल क्या रहे हो। आई आई पीक आर को एम तो एस, आई नॉट ही कहते नहीं नहीं कह सकते, आई डिस्प्लेसमेंट। हैं। ये तो एक तरीके से एसी का ही क्वेश्चन है। हाँ है तो सही, लेकिन निकालने को क्या बोला है, किसकी आई पीक पीक। वैल्यू? आई डिस्प्लेसमेंट की। कहीं तो लिखोगे ना कौन सा पार्ट है और क्या कर रहे हो उसके अंदर। हम्म। पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वैसे ये भी चल जाएगा बट डिस्प्लेसमेंट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। हम्म। सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब आया फोर्थ पार्ट विच इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन है। हम्म। बी निकालना है ना अब, यस सर। निकालो बी। जस्ट टेल मी हाउ विल यू राइट अ मॉडिफाइड मैक्सवेल्स इक्वेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ की क्या इक्वेशन होती है, लिखना। कहाँ लिख रहे हो? यस सर। प्लीज राइट द इक्वेशन ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ और मैक्सवेल्स लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, जो फाइनली अच्छा। तो वही डिराइव हुआ था ना, एम्पियर सर्किटल लॉ को ठीक करा गया यस सर। बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बी डी एल। इनके ऊपर वो डालो वेक्टर, वेक्टर का साइन बी और डी पे, ठीक है, और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लिखो, ये एक गोला, हम्म। ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट, ठीक है, आई डी, आई सी, सॉरी आई सी प्लस, नहीं 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 ये क्या लिख रहे हो, व्हाट इज आर स्क्वायर, कुछ नहीं आर स्क्वायर, अच्छा। वेट 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 वेट, आई एम गोइंग टू द प्रीवियस पेजेस, दिस इज इट, लुक एट दिस इक्वेशन, देखो क्या लिखा है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू वहां नॉट, पर। ये रहा फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज, गो टू पेज नंबर 1, हम्म। चेक दिस इक्वेशन, बी म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई प्लस ई आई डी, नॉट डी फाइव ई हाँ वन। ये तो आई डी है ना, हम्म। ये लिखनी थी। चलो गो बैक, नाउ राइट इट, आई सी प्लस आई डी, आई डी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, प्लस आई डी, यहीं पे सेम इधर ही लिखना है, अंदर ही, यस, इसको हटा दो मेरे आईडी को फिर, ठीक है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ओके। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ बी,
So you have to find between the parallel plate capacitor. Calculate it. IC तो है नहीं अभी between the parallel plates. ये निकालना है B, इसको इंटीग्रेट करो। और ये पूछा है at a distance of 2 centimeter from the axis between the plates. So if there is an axis between the two plates, अगर आपकी ये plate number 1 है और ये plate number 2 है और ये axis है, right? You have to find at 2 centimeter from the axis. और middle पूछा है, between पूछा है ना? हाँ बिटवीन। Between, तो यहाँ निकालने को बोल रहा है, between at 2 centimeter from axis. रेडियस कितना है इसका? 2। अच्छा, रेडियस भी 2 ही है। नहीं 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 दिया नहीं हुआ, नहीं। कुछ नहीं दिया, सिर्फ बोला 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस निकाल लो। ठीक है, एक्सिस के से 2 सेंटीमीटर है ये पॉइंट। इट इज हेयर यू नीड टू फाइंड बी। तो इफ यू हैव टू फाइंड 2 सेंटीमीटर देन यू विल ड्रॉ अ लाइन हियर लाइक दिस लूप। एम्पीरियन लूप बनाना पड़ता है ना पहले। यस सर। इनक्लोज करंट आईडी होगा, हम्म, एम्पीरियन लूप हो गया। और आपको निकालना क्या है? बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आई ई बाय सॉरी डी फाई ई बाई डी टी, राइट? ये आई डी होता है ना। यस सर। तो बी इंटू 2 पाई आर मतलब 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इफ यू नो एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डी सेम एज आई सी, तो आई का तो मैग्नीट्यूड यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। हाँ करेक्ट। बी निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है। और अगर रेडियस दिया हो, बाय द वे इसने रेडियस नहीं दिया ना? नहीं। नहीं दिया। अगर रेडियस दिया होता तो क्वेश्चन में रेडियस नहीं है। मान लो, let me just change it a bit so that you have more clarity. So you have this capacitor and this is your axis. कैपेसिटर जो है 10 सेंटीमीटर रेडियस का है मान लो, और वो आपको सिर्फ इधर निकालने को बोल रहा है बी। ठीक है, तो जो ठीक है। करंट है बिटवीन द कैपेसिटर्स वो पूरे पाई आर स्क्वायर इस एरिया में स्प्रेड है। दोनों के बीच में जो फ्लो करता है, क्योंकि पोलराइजेशन तो ऐसे होती है ना, ऊपर से नीचे तक। हाँ यस सर, करेक्ट करेक्ट। तो जब आप इसके ऊपर बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी के बराबर डाल दिया हमने इसको, आर एम एस के बराबर। जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइट इट आई सी। आई सी इधर तो हमने पूरा का पूरा आईसी ले लिया जो आरएमएस निकाला था, हाँ। अभी जो सॉल्व करा ऊपर यही करा था ना, आईसी इज इक्वल टू आई डी। तो ये कर दिया था ना हमने बस। बट इन रियलिटी अगर 10 सेंटीमीटर का होता ये और ये 2 सेंटीमीटर पे निकालना होता, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर के ऊपर वाले पोलराइजेशन तो रह गई, वो करंट तो यस इंक्लूड ही नहीं होगा। करंट तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक इंक्लूड होगा। तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आरएमएस, तो पूरे पूरे के अंदर जाना चाहिए था, सारी पोलराइजेशन इंक्लूड होनी चाहिए थी उसमें। अब सिर्फ 2 हाँ। सेंटीमीटर की इंक्लूड हो रही है। तो करंट का भी जो पोर्शन है वो सिर्फ इतना ही लेना है। अच्छा। रेशियो प्रोपोर्शन से, जितना एरिया उसका टोटल हिस्सा है, टोटल एरिया ये है कैपेसिटर का, हाँ। आपको सिर्फ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस से निकालने के लिए बोला गया। तो आपको तो इतनी सी पोलराइजेशन इंक्लूड करने को बोला गया ना बस। बाकी सारा करंट इग्नोर हो गया ना आपका। करेक्ट। आपके एम्पीरियन लूप में बाकी करंट ही नहीं दिखा, आपको सिर्फ यही मिला।
एंड दिस इज व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल. टोटल तो ये है पाई आर स्क्वायर, उसमें से आपको सिर्फ इतना सा मिल रहा है. तो बेसिकली देखा जाए तो कट जाएगा तो 1/25 ओनली. यू जस्ट नीड टू इंक्लूड 1/25 ऑफ द एरिया के रेशियो बता रहा हूं मैं, 4/100. पाई पाई कट जाएगा तो 4/100 आ जाएगा ना ये. 4/100. तो करंट को 1/25 करना है. अभी जब हमने ऊपर सॉल्व करा था वहां रेडियस ऑफ कैपेसिटर था नहीं. हाँ. तो इसलिए मैंने मतलब सोचा कि हो सकता है कि जो रेडियस ऑफ कैपेसिटर है वो भी 2 सेंटीमीटर है. तो सारा इंक्लूड, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है. लेकिन अगर कैपेसिटर इतना बड़ा हो जाए और उसमें से पूरा जो कंडक्शन वाला, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो पूरे एरिया पे स्प्रेड होता है, आपको वो बोल रहा है सिर्फ इतना लेने को. तो रेशियो प्रोपोर्शन में जितने एरिया में बोल रहा है उतना ही करंट लेना है, पूरा नहीं लेना. फिर पूरा करंट तो IRMS था ना जो यहाँ से आ रहा था, लेकिन उसमें से हिस्सा सिर्फ इतना ही मिलेगा. ये वाला बाकी सारा गया और ये हिस्सा जो है ये वाला है. व्हाट टोटल एरिया का कितना हिस्सा, 1/25वें हिस्से का करंट. ठीक है. समझ आया थोड़ा सा. जब एम्पियर के क्वेश्चन करते हैं सर्किटल लॉ के, तो उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन होता है. वायर का, एक वायर होती है, वायर के अंदर वायर होती है, और में भी वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं. वी विल डू दैट व्हेन वी डू द रिवीजन. नॉट वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स टू डू, हाँ, ये तो है बिल्कुल. बट गुड न्यूज इज इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ टाइप ऑफ चैप्टर. इसमें कुछ कह सकता हूँ. ज्यादा ज्ञान है नहीं. ठीक है, आई थिंक न्यूमेरिकल्स आर क्लियर. So we have a sense of the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अभी तो शुरू नहीं हुआ, बट हमें ये मालूम चल गया कि यार इतना तो पक्का है कि between the capacitor plate, if there is a time varying electric field, we will also get a magnetic field induced between the two plates. And there is a missing link, which is the displacement current. जो मिस था वो ढूंढ लिया गया, करेक्शन कर ली गई और इक्वेशन को ठीक कर लिया गया. यस सर. Broadly, ठीक है. So I'm not trying to do PhD in this, okay? So I'm not insisting that we get into too much detail. उतना ही जितना बस just about mandatory है, काम का है. ठीक है. चलो जी, see you tomorrow in the morning. थैंक यू सर. Have a good night. Bye. बाय सर.